Morning, children. You all are welcome to our history class. Children, before we start our today's session number 5, let's recap a little about the previous session. Do you remember what was explained? Any of the points you remember? Just check yourself. Many must be knowing. I know my children are good. So in the previous session, we were explained about the 3rd century crisis. And in that crisis, we were explained that how problems started in the 3rd century. Means the century of crisis started in the 3rd century. We were told that the first 200 years were of peace and prosperity for the Roman Empire, but as the Iranians were the rivals, so crisis started in political and economic field. You were explained about Shapur I, the ruler of Sasanian dynasty. No? Yes, I explained. I know many of you have heard the lecture properly. So it was said that he expanded his empire within 15 years, which was a challenge to the Roman Empire. And he captured the eastern capital of Antioch, in which he gave a loss of 60,000 army of the Romans. It was explained, children, which shows that how powerful the ruler was. And within 47 years, I told you all, there were 25 emperors, which shows that there was rapid succession in the 3rd century. It means succession rule was there and a rapid change was going on, which shows the instability of the kingdom. You were also told about the tribal groups who made the Romans move to the territory beyond the Danube River. So all this were the challenge to the Roman Empire. So let's start our today's session. Our today's session is gender, literacy and culture. So all these 3 points I will be explaining you in different points. Clear? आज का विषय है लिंग, साक्षरता, संस्कृति, जिसे आपको हम अलग अलग पॉइंट्स में बताएंगे. एंड आई एक्सपेक्ट माई चिल्ड्रेन टू राइट द पॉइंट्स नंबर वाइज इन योर डेली नोट्स कॉपी. और हम चाहते हैं कि समझाने के समय, आप सुनने के समय ये पॉइंट्स अपने डेली नोट्स कॉपी में प्लीज नोट कीजिए, जिससे आपको आंसर लिखने में आसानी होगी. लेट मी स्टार्ट नाउ. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट जेंडर. हम पहले लिंग विषय पर एक्सप्लेनेशन देंगे. इन दैट चिल्ड्रेन, देयर वाज वाइडस्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. यू नो द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? Father, mother and children, which shows that small family was in system, and it was also that the young couples did not stay with their parents. अर्थात छोटा परिवार, एकाकी परिवार की व्यवस्था थी और विवाह के बाद दंपति अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे. The next point is point number 2. Adult son did not live with the family. अर्थात वयस्क पुत्र भी अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे. It is very clear that it shows that they were proving their self-sufficiency to move towards to their career. स्पष्ट हो जाता है शायद ये रीजन हो कि एक समय के बाद, वयस्क हो जाने के बाद, वे अपने कैरियर को बनाने के लिए माता पिता को छोड़कर अन्य स्थानों में जाकर
अपने गोल को अचीव करते थे. The next is, and children, it's very clear that such system is not much in our country. Of course, rare we hear, but our children take care of their parents. Am I right? Yes, our children are good. Next is, it was exceptional for adult brother to share a common household. It's very clear, children, that when the children after the marriage, when they were not living with their parents, it shows that two brothers also were not living together. जब विवाह के बाद दंपति अपने परिवार को लेकर अलग हो जाते थे, एकाकी परिवार व्यवस्था थी, तो स्पष्ट हो जाता है कि भाइयों का भी एक ही स्थान पर रहना अर्थात संयुक्त परिवार के रूप में रहना शायद ही पाया जाता था. इट वॉज वेरी रेयर, एक्सेप्शनल, शायद ही कहीं पाया जाता था कि भाई एक साथ अपने परिवार के साथ विवाह के बाद एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार के रूप में निवास करते थे. Then comes the slaves were included in the family. It shows that they were there to help the people in their household work. स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में गुलामों को रखने की भी व्यवस्था थी. तो इस पॉइंट से स्पष्ट होता है कि उन गुलामों को अपने परिवार में घरेलू कार्यों को रखने के लिए, सहायता देने के लिए रखा जाता था, अपने साथ ही रखा जाता था. The next point is, women enjoyed considerable legal rights in owning and managing their property. स्पष्ट है कि that at that time the rights were given to the women. अर्थात जो स्त्रियां थीं उनको अधिकार मिला था, कानूनी रूप से उन्हें संपत्ति पर अधिकार मिला था, जिसका मैनेजमेंट, जिसकी देखरेख वे करने के लिए अधिकारी होती थी. It shows that Roman Empire tried to make the woman confident, independence. Then the next point, number 6, is a typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband authority. It means विवाह के बाद जो भी संपत्ति पत्नी की होती थी वह उसे अपने पति के साथ नहीं बांटती थी, उसकी देखभाल वह स्वयं ही करती थी. Clear? She did not share that property with her husband. She herself used to look after her individual property. Means financial condition of women was good in Roman Empire, and she was the only owner of her property. No such system that on her property the husband was also the joint owner. वह अपने प्रॉपर्टी की खुद मालिक होती थी, उसमें उसके पति का कोई भी दबाव या नियंत्रण कानूनी रूप से भी नहीं होता था. Clear? Then point number 7, she retained full rights in the property of her husband. Of a paternal family, means father's family. It means that the right which she had on her father's property was hers. अर्थात स्त्रियों को अपने पिता की प्रॉपर्टी पर भी अधिकार दिया गया था, जिसकी वह अकेले मालिक होती थी. And women's dowry was to be shared from her husband during the marriage. Means जो भी दहेज के रूप में स्त्रियां लेकर आती थीं, उस पर उनके पति का भी हक होता था. Means dowry can be used by her husband, but father's property of that woman was her own.
दहेज में लाया हुआ धन पर पति का अधिकार होता था, लेकिन जो उसके पिता की ओर से जो प्रॉपर्टी मिलती थी उस पर केवल उस स्त्री का ही अधिकार होता था, उस पर पति का कोई शेयर नहीं होता था। Here, women remained a primary hire of her father and independent owner after her father's death. अर्थात पिता जो संपत्ति अपनी पुत्री को देते थे, जो स्त्री को जो संपत्ति पिता की ओर से मिलती थी, वह उसकी हायर होती थी, उसकी मालिक होती थी, उसकी मालकिन होती थी, और उनके पिता के मरने के बाद भी उनका हक उस प्रॉपर्टी, उस जायदाद पर बना रहता था, उसका हस्तांतरण नहीं होता था. All these points say that the women, they were independent. Financially, they were good. And in law, children, the married couple was not one financial entity but two. अर्थात विवाह के बाद जो भी प्रॉपर्टी होती थी वह स्त्री और पुरुष की अलग अलग होती थी. स्त्री का अलग हिस्सा, पति का अलग हिस्सा. पति पत्नी के प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्से होते थे, उनके वे अलग अलग शेयर होते थे. ऐसा नहीं कि जो पति का है वो पत्नी का है, जो पत्नी का है वो पति का भी है, तो उसमें कोई इंडिविजुअल शेयर नहीं है. ऐसा रोमन एम्पायर सिस्टम में नहीं था. उनका अपना जो धन था उस पर वे अकेले मालिक होते थे. And women enjoyed legal independence, means after the divorce also the women was able to sustain. अर्थात किसी भी परिस्थिति में यदि तलाक हो जाता था तो भी स्त्रियां इंडिपेंडेंट होती थी, आत्मनिर्भर होती थी. उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वे अपने धन की स्वयं की मालकिन होती थी. उनके पति का उस पर कोई भी दबाव नहीं होता था. Then comes divorce was relatively too easy because only a notice of intent was needed to dissolve the marriage. अर्थात उस समय रोमन एम्पायर में जो तलाक की व्यवस्था थी बड़ी ही आसान होती थी. उसमें केवल एक नोटिस डालनी पड़ती थी कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वे एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, और वे अलग कर दिए जाते थे. उसका कोई लंबा प्रोसेस नहीं चलता था. मीन्स द यू कैन से इंडिविजुअली दे वेर फ्री. इंडिविजुअली दे कैन डू दिस. मीन्स पत्नी चाहे या पति चाहे, किसी परिस्थिति में यदि दोनों में अनबन है, काफी समय तक उन लोगों ने समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन आगे यदि ये समझौता जारी नहीं रह पा रहा है तो वे एक दूसरे से अलग हो सकते थे, केवल एक नोटिस डाल के कि वे एक दूसरे के साथ अब रहने में असमर्थ है. गेटिंग द पॉइंट? यस. Okay, but here in our country it's not. It takes a process because we believe in the relation what God has made. Then come the male's married life, means the age was late 20s or early 30s. लड़कों के लिए विवाह की उम्र लेट 20 और अर्ली 30s, 20 वर्ष के बाद और आरंभ के 30 वर्षों के समय के बीच उनका विवाह होता था. और लड़कियों के लिए इट वॉज टीन्स और अर्ली 20. यू कैन से फ्रॉम 14 to 20 years, 20, 22, 3 years like that. तो ऐसी स्थिति में देखा जाता था कि दोनों पति पत्नी के बीच 8 से 10 वर्ष का करीब अंतर होता था. यहाँ भी आप देखती हैं कि स्त्रियों को विवाह के लिए कम आयु निश्चित की गई है. Then comes the next point. It is that at that time, children, marriages were generally arranged and women were dominated by her husband. It shows
that at that time the archaeologists, the remains or whatever inscription, whatever sources were found, did not get any evidence that at that time love marriage was there. As the history says, at that time arranged marriage was in vogue. जहां तक इतिहासकारों को जो प्रमाण मिले हैं उसमें प्रेम विवाह का कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला, बल्कि व्यवस्था विवाह का ही उस समय बोलबाला था, अर्थात सिस्टम था। और उस समय भी पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष स्त्रियों पर डोमिनेंट होते थे। कहीं कहीं स्त्रियों का शोषण भी किया जाता था, शारीरिक और मानसिक शोषण होता था। In that it is an example of Saint Augustine, where in his biography he has written about his mother who was dominated by his father. अर्थात सेंट अगस्टिन ने अपने बायोग्राफी में लिखा इसी परिप्रेक्ष्य में रोमन एम्पायर के विषय में कि उनकी माता का शोषण उनके पिता के द्वारा किया गया। और इसके साथ ये भी वर्णन किया गया कि उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, लेकिन समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज था जो कहीं ना कहीं स्त्रियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न करते थे। But what is the condition now? You know that we all are on the same platform. आज हमारे संविधान ने हमारे भारत में स्त्री और पुरुष को दोनों को एक समान अधिकार दिए हैं। Clear? Then comes the next about father. Father had substantial control over his children. अर्थात पिता को अपने बच्चों पर पर्याप्त अधिकार दिए गए थे एज ए लीगल पावर। कहा जाता है कि पिता अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इवन उनकी जीवन और मृत्यु का भी डिसीजन वे खुद ले सकते थे जो कानून ने उन्हें दिया था। तो शायद यह बहुत नैतिक, आज के विषय में तो हम अग्री नहीं करते कि ये बहुत नैतिक था। उस समय की व्यवस्था क्यों ऐसी थी इसका वर्णन तो ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन आज हम और आप इस बात को अग्री नहीं करते हैं कि पिता को इतना अधिकार मिला था कि वे अपने बच्चों के लिए लीगली उनके जीवन और मृत्यु का भी अधिकार उनके हाथ में था। इसके लिए वह क्राइम नहीं माना जाता था अकॉर्डिंग टू द रोमन लॉ। So I think so you have note down the points. I have explained point number 1 in 15 points. Please go through it. Now we'll see to literacy. अब हम देखते हैं साक्षरता के बारे में। रोमन साम्राज्य में साक्षरता कितनी थी इसका वर्णन आप इसमें सुनेंगे। What is the meaning of literacy children? Means ability to read and write. साक्षरता मतलब एक व्यक्ति को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। So we'll see about the system in Roman Empire. Children, role of casual literacy varied greatly between different parts of the empire. Means there was no uniformity. Of course, it cannot be because you have already heard that Roman Empire was a vast empire. That is why there was quite difference in different places regarding literacy. कहा जाता है कि साक्षरता के विषय में एक समान रूप में हर एक क्षेत्र में रहने वाले लोग शिक्षित नहीं थे। किसी एक क्षेत्र में साक्षरता अधिक थी तो कहीं दूसरे क्षेत्र में साक्षरता अपेक्षाकृत कम थी। और हो भी नहीं सकता था बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, तो ये शायद संभव नहीं था कि इतने बड़े विशाल साम्राज्य में एक समान साक्षरता पाई जाए। Then comes it is that in Egypt city hundreds of papyrus was found. You must be knowing what is papyrus. Now it's your work to write in your daily notes copy what is papyrus, about which you have read in your previous classes in Egyptian civilizations. Okay. So at that time, children, several rolls of paper were found, which shows that there was literacy in Egypt.
People were literate. And then comes the next about the city of Pomili. Pomili शहर था. There also strong evidences were found which shows that there was casual literacy. How? Because people, the excavations tells, the sources tells about the advertisement and graffiti. Advertisements means it was done on the wall, and graffiti means pictorial representation. विज्ञापन जो दीवारों पर किया हुआ उसके अवशेष मिले या उसके एविडेंसेस मिले, और ग्राफिटी जिसको हम पिक्चर के द्वारा प्रकट करते हैं, अपनी बात को पिक्चर के द्वारा कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल आज के समाज से आप अपने भारत से ही ले लीजिए. हम और आप अलग अलग जगह पर देखते हैं स्लोगन लगा रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. देखा होगा आपने, देखा है एडवर्टीजमेंट, and it gives a message. And if we speak about graffiti, then you must have seen many pictures related to save girl child. अगर ग्राफिटी का एग्जाम्पल लो तो आप कई जगह आपने देखा होगा ऐसे बहुत पिक्चर्स लगे रहते हैं जहां बेटी बचाओ का संदेश मिलता है. So this was also in Roman Empire in the city of Pomili, which shows literacy was there in Pomili city also. Then comes the next is about formal documents such as contracts were usually written by professional scribes. अर्थात आप कह सकती हैं कि उस समय कुछ जो अनौपचारिक दस्तावेज होते थे, अर्थात जो संविदा पत्र होते थे, उससे व्यावसायिक लिपिक के द्वारा लिखवाया जाता था. उसके भी अवशेष मिले हैं. अवशेषों के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि लिटरेसी थी. अगर लिटरेसी नहीं होती तो व्यावसायिक लिपिक नहीं होते, और जो ये दस्तावेज थे ये औपचारिक रूप में, डिटेल रूप में, लिखित फॉर्म में तैयार नहीं किए जा सकते. स्पष्ट हो जाता है कि कानून था और वह लिखित रूप में था, दस्तावेज थे वे भी लिखित रूप में प्राप्त हुए, जिससे साक्षरता स्पष्ट होती है. You can say rate of literacy is clear with this. Then comes the next point, culture. In this children will see about the cultural aspect of Rome. इस पॉइंट में आप रोम के संस्कृति के बारे में सुनेंगे कि रोम की संस्कृति में क्या एकरूपता थी या विविधता. तो आप समझ सकती हैं कि एकरूपता शायद नहीं होगी, क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य जहां हर जाति के लोग अलग अलग क्षेत्रों से रहने वाले हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, तो एकरूपता तो नहीं थी, विविधता जरूर थी. आपके अपने भारत में क्या है, विविधता में एकता. हमारे यहाँ भी पता नहीं कितने जाति के लोग, अलग अलग रिलीजियस रिचुअल्स को करने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं. Still we all are Indians. Clear? In this children, it is said that the cultural diversity was reflected in many ways and many levels. Means the cultural diversity was from aristocrats to the people, or you can say to the grassroots. एक उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, राजा से लेकर रंग तक, मध्यम क्लास, मीडियम क्लास, हाई क्लास, लेबरर क्लास, स्लेव्स, सबकी अलग अलग संस्कृतियां होती थी, सबके अलग अलग मानने के ढंग होते थे, कौन किस तरह उस संस्कृति को फॉलो करता है. This shows that there was diversity, cultural diversity was there. And the next is that in the vast diversity of religious culture and local cities, अर्थात religious field में भी, स्थानीय स्तर पर भी काफी धार्मिक विविधता दिखाई देती थी. Why? Because people of different races were living together. अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक स्थान पर रहते थे. एक विशाल साम्राज्य था रोम. अब जब अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं तो स्पष्ट है कि उनकी संस्कृति अलग होगी, और ये उदाहरण आपके खुद अपने भारत में है. हम अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं, तो वहां पर भी अलग अलग संस्कृति को लोग फॉलो करते थे. उस संस्कृति में, उस कल्चर में कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. एंड द नेक्स्ट इज दैट देयर वाज
प्लूरैलिटी ऑफ लैंग्वेज मीन्स किसी एक भाषा को वहां केवल महत्व नहीं था. If you remember in the one of the sessions I told you that official language was Greek and Latin because the upper class used to speak those two languages. अर्थात कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता था. आपके अपने भारत में भी ऐसा है, अलग अलग राज्य की अपनी भाषाएं, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है. तो उस समय अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी. तो ऐसा नहीं बच्चों कि पूरे रोमन एम्पायर में केवल यूनानी और लैटिन भाषा में ही बात की जाती है, ऐसा नहीं है. ग्रीक एंड लैटिन वर स्पोकन बाय द अपर क्लास ऑफिशियल लैंग्वेज, बट अदर पीपल यूज्ड टू स्पीक इन देयर ओन local languages. That also shows diversity in the culture. And the style of dressing was also different in different places, in different class. अर्थात पहनने ओढ़ने का तरीका, पहनावा, लोगों का पहनावा भी अलग अलग था. Dressing style was different in different class, in different ways, in different places. Means the dressing of aristocrats, dressing of, you can say, the elites, dressing of the medium class, dressing of the slaves, dressing of the lower class, all was different and at different places. अलग अलग जगह पर अलग अलग लेवल पर लोगों के पहनावे में भी अंतर था. स्पष्ट है? हमारा भारत लेकिन इससे कुछ अलग है. अलग है बच्चों, अच्छी बात है, क्योंकि हमारी विशेषता क्या है? विविधता में एकता. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फूड आइटम्स वेर ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस. जो खान पान का तरीका था वह भी संगठनों के हिसाब से था, बिकॉज देयर वेर रिमोट एरियाज मीन्स ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल. अकॉर्डिंगली दे यूज टू ईट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. समाज के जो अलग अलग जो स्तर थे, रहन सहन का जो तरीका था, स्टाइल ऑफ लिविंग, सो दैट ऑल्सो वॉज सीन इन अ डिफरेंट वे इन ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो. जैसे पहनने ओढ़ने के तरीके अलग थे, ठीक है, संस्कृति लोग अलग अलग फॉलो करते थे, उसी प्रकार खान पान भी अलग अलग देखा गया. स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति में काफी विविधता पाई गई. So I hope so all these 3 points are clear. Okay children? Thank you children. God bless you.